Hello, my dear lovely students. Welcome to the class again. My name is Mansi and I am your science educator. Today I will explain you the first chapter of class 3rd. The chapter name is Living and Non-Living Things. Living और non-living things. क्या होती है living things और non-living things? Things that breathing can move one place to another are living things. जो चीजें सांसें लेती हैं या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाती हैं विदाउट एनी हेल्प, वो लिविंग थिंग्स होती है। और नॉन लिविंग इसके अपोजिट, जो ब्रीथिंग नहीं करती है या मूव नहीं करती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दिस चैप्टर इज फ्रॉम यूनिट फर्स्ट। द यूनिट फर्स्ट नेम इज द लिविंग वर्ल्ड। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, these are some learning objectives. The learning objectives are common features of living things. Living things के common features क्या क्या होते हैं? And the next one is natural and man-made things. कुछ चीजें नेचुरल होती हैं जो नेचर में पाई जाती हैं, जिनको गॉड बनाते हैं। मैन नहीं बनाते, उनको नेचुरल थिंग्स बोलते हैं, और जो मैन बनाते हैं उनको मैन मेड थिंग बोलते हैं। This is the tune of activity. The activity is tick write the living things. जो भी living things है उस पर tick write करना है। Butterfly is a living things. Balloon is non-living things. Doll is non-living things. House is also non-living things. Frog is living things. And plant is also living thing. Now come to the chapter. The chapter begins from here. We see so many things, plants, animals and people around us like trees, car, clouds, birds, people, toy, etc. हम अपने चारों तरफ बहुत सारी चीजें देखते हैं, लाइक प्लांट्स भी देखते हैं, एनिमल्स भी देखते हैं, बहुत सारे पीपल्स भी होते हैं हमारे चारों तरफ, और ट्रीज, कार्स क्या होते हैं, क्लाउड्स भी होते हैं, बर्ड्स भी होते हैं, टॉयज भी होते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे सराउंडिंग होती हैं। सम ऑफ दीज थिंग्स आर लिविंग while some are नॉन लिविंग। इनमें से कुछ चीजें तो लिविंग थिंग्स होती हैं और कुछ नॉन लिविंग होती हैं। The things that are alive are called living things. जो चीजें alive होती हैं वो क्या होती हैं, living things कहलाती हैं। Animals, bird, trees, insects, snakes, people and plants are living things. कौन कौन से living things में आते हैं? Animals आते हैं, birds आते हैं, trees, plant, insects, ये सब क्या है, ये alive होते हैं। ये क्या करते हैं, breathing करते हैं। तो ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं living things में। This is some there are some pictures of living things. This one is human, next is tree, the third one is animal. This is dog. Dog is also a living thing. The things that are not alive are called non-living things. चीजें जो alive नहीं होती हैं, alive that means जो breathing नहीं करती हैं, वो आती हैं non-living things में, like table, chair, car, toy, house and stone are non-living things. Non-living things में कौन कौन सी चीजें आती हैं? टेबल है, चेयर है, कार, नोटबुक, पेन, टॉयज, डॉल, टेडी बियर्स, हाउस, स्टोन्स, ये सब क्या आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। These are some pictures of non-living things. The first one is car. Car is non-living things, toy and house. These are non-living things. Try this activity. Write any two living things. कोई दो living things के नेम लिखने हैं आपको, आप कुछ भी लिख सकते हैं। Animals and plants. These are living things. Write any two non-living things. कोई भी non-living things लिखनी है आपको, toys और car. Next point is common features of living things. That means common features क्या क्या होते हैं living things के, हम कैसे कैटेगराइज कर पाते हैं लिविंग थिंग्स को और नॉन लिविंग थिंग्स को। वो वाले क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं जो इनको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। The first point is living things need food and water. Living things को किस किस चीज की जरूरत होती है, फूड एंड वाटर की, क्योंकि उनको सर्वाइव करने के लिए खाना और पानी चाहिए होता है। All living things need food and water to live and grow. उनको all living things को food and water चाहिए, क्यों चाहिए, to live and grow. That means alive रहने के लिए और grow करने के लिए, बढ़ने के लिए उन्हें क्या चाहिए, food and water चाहिए।
फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल लिविंग थिंग्स। फूड क्या करता है? फूड एनर्जी प्रोवाइड करता है, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। These are different types of food of animals and human beings. यहाँ पर क्या दी है? ये बेबी क्या खा रहा है? ये क्या खा रहा है? बाउल, वेजिटेबल्स से फिल बाउल। ये क्या कर रहा है? खा रहा है, वेजिटेबल्स खा रहा है। दिस इज गोट, गोट क्या खाती है? ग्रास खा रही है। दिस इज डॉग, द फूड ऑफ डॉग इज बोन, उसको बोन सबसे अच्छी लगती है। एंड दिस इज द काउ, एंड काउ का बेबी क्या कर रहा है? मिल्क पी रहा है। Now, animals and human being depends on plants and animals for food. क्या होते हैं? एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स किस पे डिपेंड्स होते हैं फूड के लिए? प्लांट्स पर और एनिमल्स पर। उन्हें फूड आइटम्स कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं और एनिमल्स से मिलती हैं। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, एयर एंड वाटर। प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड खुद से बनाते हैं। क्या क्या यूज करके? सनलाइट यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, एयर यूज करते हैं। दिस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, और इसको किस नाम से जाना जाता है? फोटोसिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। फूड प्लांट्स अपना फूड खुद क्या करते हैं? खुद बनाते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिक्वायर फूड, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे एक टेडी बियर है, उसको फूड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि उसको ग्रो ही नहीं करना है, अलाइव भी नहीं है वो, उसको ग्रो भी नहीं करना है, तो उसको फूड की नीड नहीं होती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स क्या करती है? ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो विथ टाइम। सारी लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? टाइम के साथ बढ़ती चली जाती हैं। अ न्यू बॉर्न बेबी ग्रोज इनटू एन अडल्ट मैन। एक न्यू बॉर्न बेबी क्या होता है? ग्रो करके एक अडल्ट मैन में चेंज होता है। और अडल्ट मैन आर हैवियर देन यंग मैन। अडल्ट मैन क्या होता है? यंग मैन से हैवी होता है, क्योंकि वो बड़ा होता है तो हैवी भी होता है, वेट में भी इंक्रीमेंट होता है। दीज आर सम पिक्चर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड, बेबी टू ओल्ड। पहले बेबी होता है, फिर क्या होता है? बिग बॉय बनता है, फिर अडल्ट मैन बनता है, यंग मैन बनता है, अडल्ट मैन बनता है, फिर क्या होता है? ग्रो ओल्ड, ओल्ड भी हो जाता है। तो ये क्या है? ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड। A seed grows into a sapling and then into an adult. एक ग्रो adult plant, एक सीड, एक बीज क्या करता है? ग्रो करके एक प्लांट बनता है, छोटा पौधा बनता है, उसके बाद एक अडल्ट प्लांट बनता है, बड़ा पौधा बनता है। द प्लांट में ग्रो टू बिकम अ ट्री। प्लांट्स क्या करते हैं? ग्रो करके ट्रीज भी बन जाते हैं। लेट्स नो अबाउट दिस फैक्ट। फ्रॉग लिव्स इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। फ्रॉग क्या करते हैं? वाटर में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं। फ्रॉग दोनों जगह पर रह सकते हैं। इन वाटर इट ब्रीथ्स थ्रू स्किन एंड ऑन लैंड इट ब्रीथ थ्रू लंग्स। वाटर में क्या करते हैं? वो ब्रीथिंग किसके थ्रू करते हैं? स्किन के थ्रू करते हैं। और लैंड पर वो ब्रीथिंग किसके थ्रू करते हैं? लंग्स के थ्रू करते हैं। दिस इज द ग्रोथ ऑफ अ सीड। एक सीड होता है, उसको क्या करा जाता है? सॉइल में क्या करा जाता है? उसको सॉइल में ग्रो करने के लिए लगाया जाता है। फिर एक क्या करता है? एक लीव निकलती है छोटी सी, फिर और लीव्स होती है, फिर फ्लावर बन जाता है। दिस इज द ग्रोथ ऑफ अ सीड। एनिमल्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम बेबीज टू अडल्ट। एनिमल्स भी बेबीज, एक बेबी एनिमल होता है, उसके बाद वो बड़ा होके एक अडल्ट एनिमल बन जाता है। एनिमल्स का भी सेम प्रोसेस होता है। दिस इज द पिक्चर बेबी cat, and this is she is her mother. This is the picture of lion and kid. This is the picture of dog and puppy. Now come to the next page. As living things grow, they also change in the form and appearance. क्या जैसे जैसे लिविंग थिंग्स बढ़ती हैं, वो क्या करती हैं? वो अपने अपीयरेंस में भी, मतलब दिखने में भी चेंज होती हैं और फॉर्म में भी चेंज हो जाती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स रिमेन द सेम। अब नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? वो हमेशा सेम ही रहती हैं, चेंज नहीं होती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करती हैं। द थर्ड पॉइंट इज लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? मूव भी करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ऑल लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर
लिविंग थिंग्स क्या होती है, मूव करती है एक प्लेस से अदर प्लेस टू सर्च फूड, फूड को सर्च करने के लिए, लुक फॉर शेल्टर्स, शेल्टर्स दैट मीन्स होम, अपने लिए हाउस ढूंढने के लिए, प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हीट कोल्ड रेन ईटीसी, अपने आप को हीट कोल्ड और रेन से बचाने के लिए क्या करते हैं, वो वन प्लेस से अनदर प्लेस पर क्या करते हैं, मूव कर पाते हैं। सम एनिमल्स हंट फॉर देयर फूड व्हाइल अदर ग्रेज ऑन ग्रास, कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, हंट करते हैं अदर एनिमल्स को अपने फूड के लिए, और कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, ग्रास खाते हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, बर्ड्स क्या करती हैं, एयर में फ्लाई करती हैं। बटरफ्लाई एंड मॉस्किटोज ऑल्सो फ्लाई, बटरफ्लाइज एंड मॉस्किटोज भी फ्लाई करते हैं। मंकी स्विंग्स फ्रॉम ट्री टू ट्री, और मंकी क्या करते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते रहते हैं। These are some pictures of bird, run and dog. Soil hold the plant to the ground so that they cannot move. अब plants भी living things है, लेकिन plant एक place से दूसरे place पर move नहीं कर पाते, वो मूवमेंट अपने क्या अपने पार्ट ऑफ प्लांट से शो करते हैं। क्यों नहीं वो मूव कर पाते, क्योंकि सॉइल प्लांट्स को होल्ड करके रखता है, जो उसकी रूट्स होती हैं वो सॉइल में होती हैं और वो उसको होल्ड करके रखता है। प्लांट शो मूवमेंट, प्लांट्स भी मूवमेंट शो कर, बट पार्ट्स ऑफ सम प्लांट्स शो मूवमेंट, लेकिन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, कुछ पार्ट्स प्लांट्स के मूवमेंट शो करते हैं, जैसे लीव्स है, फ्लावर्स हैं और फ्रूट्स हैं। द सनफ्लावर टर्न्स टू फेस द सन, सनफ्लावर क्या करता है, सन की तरफ अपना फेस टर्न कर लेता है। लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट क्लोज एंड ड्रॉप डाउन व्हेन टच, और एक प्लांट होता है टच मी नॉट, उसको टच करते हैं तो वो क्या करता है, अंदर छुप जाता है। प्लांट क्लोज एंड ड्रॉप डाउन व्हेन टच, नीचे झुक जाता है और छुप जाता है। दिस इज सनफ्लावर, दिस इज टच मी नॉट प्लांट। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन लिविंग थिंग्स मूव ओनली व्हेन दे आर पुश्ड और पुल्ड। अब नॉन लिविंग थिंग्स कब मूव करती हैं, जब उनको पुश करा जाता है या पुल करा जाता है, उस अदरवाइज वो मूव नहीं कर पाती हैं अपने आप से। दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, अपने आप से खुद से वो मूव नहीं कर पाती हैं। लेट्स नो अबाउट दिस फैक्ट। स्पॉन्जेस आर सी एनिमल्स, स्पॉन्ज जो होते हैं वो सी एनिमल्स होते हैं, समुद्र में रहते हैं। मैनी ऑफ देम मूव वेरी स्लोली, उनमें से कुछ बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं, और डू नॉट मूव एट ऑल, और उसमें से कुछ जो होते हैं वो मूव भी नहीं करते हैं, एट अ सेम प्लेस पड़े रहते हैं। द नेक्स्ट वन इज ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो ब्रीथिंग करती हैं, सांस लेती हैं। लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट एयर, लिविंग थिंग्स विदाउट एयर क्या कर सकती हैं, सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, क्योंकि एयर के थ्रू क्या करती हैं, वो ब्रीथिंग करती हैं। दे ऑल ब्रेथ इन द एयर, वो अपने मतलब एयर में क्या करती है, ब्रीथिंग करती है। द प्रोसेस बाय विच आवर बॉडी टेक्स इन एंड आउट एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग, जो प्रोसेस होता है कि एयर को अपनी बॉडी के अंदर ले जाना और बाहर लेके आना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। एनिमल्स हैव स्पेशल ऑर्गन फॉर ब्रीथिंग्स, एनिमल्स के पास अपने स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं ब्रीथिंग के लिए। ह्यूमन बींग्स एंड मैनी अदर एनिमल्स ब्रीथ इन द एयर थ्रू नोज और माउथ। एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो किसके थ्रू ब्रीथिंग करते हैं, अपनी नोज और माउथ के थ्रू ब्रीथिंग करते हैं। इंसेक्ट्स सच एज कॉकरोच एंड बटरफ्लाई ब्रेथ थ्रू देयर टाइनी एयर होल्स, बटरफ्लाई और क्रोकरोच किससे ब्रेथ करते हैं कि उनमें क्या होते हैं, टाइनी होल्स होते हैं, एयर होल्स, उसके थ्रू वो ब्रीथिंग करते हैं, उनकी बॉडी में होल्स होते हैं। दिस इज द फिश गिल ब्रीथिंग प्रोसेस इन लिविंग बींग्स, ये पूरा ब्रीथिंग प्रोसेस है लिविंग बींग्स का। एंड दिस इज द कॉकरोच। फिश ब्रेथ थ्रू गिल्स, फिश किसके थ्रू ब्रीथिंग करती है, गिल्स, उसके गिल्स होते हैं, उनके थ्रू फिश ब्रीथिंग करती है। दे टेक ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, वो क्या करती है, वो ऑक्सीजन लेती है, वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको ब्रीथिंग के थ्रू लेती है। प्लांट्स ब्रेथ थ्रू टाइनी होल्स इन देयर लीव्स, आप प्लांट्स कैसे ब्रीथिंग करते हैं, उनके जो लीव्स में टाइनी छोटे छोटे होल्स होते हैं उसके थ्रू वो ब्रीथिंग करते हैं। दीज टाइनी होल्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, उन छोटे छोटे होल्स को हम क्या कहते हैं, लीव्स में जो छोटे होल्स होते हैं उनको हम कहते हैं स्टोमेटा।
Next point is non-living things do not have life so that they do not breathe. Non-living things की कोई life ही नहीं होती, इसलिए वो breathing नहीं करते हैं. Try this activity on at your home. Take two potted plants having broad leaves. दो पौधे लेने हैं आपको, पॉट लेने हैं, उनको उसमें क्या हो, दोनों में अच्छी खासी लीव्स हो. Apply wax on all the leaves of one plant on the upper and lower surface. आपको क्या करना है, उनमें से एक प्लांट की लीव्स पर ऊपर और नीचे वैक्स लगा के रखना है. वैक्स लगा देंगे. वाटर बोथ द प्लांट एवरी डे. अब दोनों प्लांट्स को डेली वाटर देना है. ऑब्जर्व द प्लांट्स डेली. अब डेली क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है प्लांट को, किस प्लांट में क्या क्या चेंजेस आया है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे. द प्लांट विद वैक्स गेट ड्राइड. जो प्लांट पर वैक्स लगी थी वो ड्राई हो चुका है. द वैक्स ऑन द लीव्स क्लोज ऑल द स्टोमेटा pores and the air could not enter the plant cell. अब क्या होता है, वैक्स क्या करती है, वो लीव्स के स्टोमेटा को क्या कर देती है, ब्लॉक्स कर देती है, बंद कर देती है, जिससे एयर क्या होती है, प्लांट्स में नहीं पहुंच पाती है. द प्लांट कुड नॉट ब्रेथ एंड इट हैड ड्राइड. प्लांट्स क्या होता है, फिर ब्रीथिंग नहीं कर पाता है, क्योंकि प्लांट्स किसके थ्रू ब्रीथिंग करते हैं, लीव्स के थ्रू. अब वो ब्रीथिंग नहीं कर पाता है तो वो क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, सूख जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज लिविंग थिंग्स फील एंड रिस्पॉन्ड. लिविंग थिंग्स फील करती हैं और रिस्पॉन्ड भी करती हैं. ऑल लिविंग थिंग्स कैन फील द चेंजेस अराउंड दैम. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं अपने अराउंड चेंजेस को फील करती हैं. इन विंटर्स वी शिवर एंड वी स्वेट व्हेन इट इज वेरी हॉट. विंटर्स में हम क्या करते हैं, बहुत शिवरिंग करने लगते हैं, ठंड से शिवरिंग करने लगती है हमारी बॉडी. और समर्स में क्या होती है, हमें स्वेटिंग होने लगती है. वी लाफ व्हेन वी आर हैप्पी एंड क्राई व्हेन वी आर सैड. हम क्या करते हैं, हम हंसते हैं जब हम खुश होते हैं और रोते हैं जब हम दुखी होते हैं. वी नीड टी और कॉफी इन विंटर एंड आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक इन समर्स. हमको विंटर्स में टी और कॉफी की नीड होती है और समर्स में आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स की नीड होती है. बिकॉज वी रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू आवर सराउंडिंग. क्योंकि हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे हमारे सराउंडिंग का क्या होता है, एटमोस्फेयर होता है, उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स करते हैं. जो कंडीशंस होती हैं उनके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स करते हैं. दिस इज द पिक्चर ऑफ स्वेटिंग. इस बॉय को क्या हो रही है, बहुत स्वेटिंग हो रही है. एंड दिस इज अ लाफिंग बेबी एंड दिस इज अ शिवरिंग गर्ल. ये शिवरिंग कर रही है बिकॉज ऑफ द कोल्ड. द नेक्स्ट इज most animals sense the world around them by using their eyes, nose, skin, ear and tongue. ज्यादातर एनिमल्स अपने वर्ल्ड को कैसे सेंस कर पाते हैं, यूजिंग देयर आईज, नोज, स्किन, ईयर और टंग से सेंस कर पाते हैं. सम स्मॉल इंसेक्ट्स हैव फीलर्स टू स्मेल, फील एंड टेस्ट थिंग्स. कुछ एनिमल्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स के पास क्या होते हैं, फीलर्स होते हैं, फील करने वाले पार्ट्स होते हैं. क्या, फील, स्मेल करने के लिए, फील करने के लिए और चीजों को टेस्ट करने के लिए. सम स्मॉल इंसेक्ट्स हैव प्लांट्स कैन ऑल्सो रिएक्ट टू चेंज इन सराउंडिंग. प्लांट्स भी रिएक्ट करते हैं अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग. इफ वी टच द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट, इट लीव्स एट वंस क्लोज एंड ड्रॉप डाउन. अगर हम टच मी नॉट प्लांट को टच करने जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, झुक जाता है और अपने आप को क्लोज कर लेता है. Some flowers open in the morning and close at night. कुछ फ्लावर्स होते हैं कि वो रात में दिन में तो उठते हैं मॉर्निंग में और रात को सो जाते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील. अब नॉन लिविंग थिंग्स को फीलिंग नहीं होती है, वो कुछ भी फील नहीं करता है. इवन इफ यू थ्रो योर टेडी बियर ऑन द ग्राउंड इट विल बी अनअफेक्टेड. अगर आप अपने टेडी बियर को ऊपर से लेके नीचे ग्राउंड पर गिरा भी दोगे तो वो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, वो एक नॉन लिविंग थिंग्स है. द नेक्स्ट पॉइंट इज लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं. द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वंस काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. जो प्रोसेस होता है, जो एबिलिटी होती है प्रोड्यूस टू देयर यंग वंस, मतलब अपने बेबी को बर्थ करने की जो एबिलिटी होती है वो क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है. लिविंग थिंग्स
रिप्रोड्यूस, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। अब जो भी लिविंग थिंग्स होती है वो अपने ही काइंड, अपने ही जैसे को रिप्रोड्यूस करती है। जैसे एक ह्यूमन बीइंग है तो वो ह्यूमन बेबी को रिप्रोड्यूस करता है। एनिमल्स है, लायन है तो वो लायन बेबी को रिप्रोड्यूस करेगा। और कोई भी एनिमल होगा, कोई भी इंसेक्ट होगा, वो अपने ही काइंड को रिप्रोड्यूस कर पाता है। एनिमल्स सच एज फिश, लिजर्ड्स, फ्रॉग, क्रोकोडाइल एंड बटरफ्लाइज ETC ले एग्स। कुछ एनिमल्स होते हैं जो बेबी को बर्थ नहीं करते हैं, एग्स देते हैं, जैसे लिजर्ड है, फिश है, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, बटरफ्लाइज, ये सब एग्स देते हैं। द एग्स ऑफ फिश, लिजर्ड, फ्रॉग, क्रोकोडाइल एंड बर्ड हैच टू प्रोड्यूस यंग वंस। और फिर क्या करते हैं, ये अपने एग्स को हैच करते हैं, फिर उनसे बेबीज निकलते हैं, एग में से बेबीज निकलते हैं, यंग बेबीज, छोटे बेबीज। एग लेइंग एनिमल, ये इमू है, एग लेइंग एनिमल है। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। पहले एग होता है, फिर क्या होता है, कैटरपिलर आता है, फिर प्यूपा आता है, फिर एडल्ट बटरफ्लाई बनता है। नाउ यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल, अलग अलग एनिमल्स के यंग वंस है। बफेलो, बफेलो के बेबी को बर्थ करेगा। कैट, कैट के बेबी को बर्थ करेगी। एंड दिस इज द डॉग, डॉग डॉग बेबी को बर्थ करेगा, लाइक पपीज। अदर एनिमल्स सच एज लायन, टाइगर, एलिफेंट एंड इवन ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनसे अलग एनिमल्स वो क्या करते हैं, और ह्यूमन बींग्स भी अपने ही यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट प्रोड्यूस थ्रू सीड्स। अब प्लांट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स है, वो भी प्रोड्यूस करते हैं। वो रिप्रोड्यूस करते हैं किससे, सीड के थ्रू, बीज के थ्रू वो रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स मोस्टली ग्रो फ्रॉम सीड्स। प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, सीड से ग्रो करते हैं। अ मैंगो सीड ग्रो इनटू अ मैंगो ट्री। एक मैंगो का जो बीज होता है उससे क्या बनता है, पूरा मैंगो ट्री बनता है। एन एप्पल सीड ग्रोज इनटू एन एप्पल ट्री। एक एप्पल सीड क्या होता है, एप्पल ट्री बनता है। ऑल प्लांट डू नॉट ग्रो फ्रॉम सीड। सारे प्लांट्स क्या करते हैं, सीड से ग्रो नहीं करते हैं। सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम देयर स्टेम, लीव्स और रूट। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो किससे रिप्रोड्यूस होते हैं, उनकी स्टेम से, लीव से और रूट से। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ इन प्लांट। ग्रोथ इन प्लांट डिफरेंट टाइप से होती है। यहाँ पर ये सीड से हो रही है, स्टेम से प्लांट ग्रो हो रहा है, रोज का। The next point is living things have a life cycle. Living things की क्या होती है, एक लाइफ साइकिल होती है। All living things die when they become old. बहुत सारी लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, वो जब बूढ़ी हो जाती हैं, ओल्ड हो जाती हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, डाई हो जाती है, मर जाती हैं। They have a definite life स्पैन। उनकी एक पर्टिकुलर लाइफ एज होती है, उस एज के बाद वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। अ डॉग लिव्स फॉर 10 to 12 ईयर्स। एक डॉग 10 से 12 साल तक जीता है, एंड देन डाई, और उसके बाद मर जाता है। अ ह्यूमन बीइंग लिव फॉर 60 to 80 ईयर्स एंड देन डाई। एक ह्यूमन बीइंग्स का अप्रोक्स कितने ईयर्स तक जीता है, 60 to 80 ईयर्स तक जीता है, उसके बाद क्या जाता है, मर जाता है। इंसेक्ट हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन। इंसेक्ट्स की बहुत छोटी लाइफ होती है। वाइल द टॉर्टोइज हैव अ बिगर लाइफ स्पैन। और टॉर्टोइज की बहुत बड़ी लाइफ होती है। टॉर्टोइज बहुत लंबे टाइम तक जीता है। Some plants like mint live for only one season, while plants like banyan and people live for many years. कुछ प्लांट्स जैसे मिंट है और टोमेटो है, ये एक सीजन के लिए ही रहते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। और कुछ प्लांट्स हैं जैसे बनियन ट्री है, पीपल ट्री है, ये मल्टीपल ईयर्स जीता है, मैनी ईयर्स तक ये क्या करता है, सर्वाइव कर पाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स हैव नो लाइफ इन दैम। अब नॉन लिविंग थिंग्स में अपनी कोई लाइफ नहीं होती है, हेंस दे डू नॉट डाई, इसलिए वो मरते भी नहीं है। दे आर अनलाइक लिविंग थिंग्स इन एवरी रेस्पेक्ट। वो लिविंग थिंग्स से बिल्कुल अलग होते हैं हर चीज में।
दे कैनॉट मूव, ब्रेथ, रिप्रोड्यूस एंड ग्रो। अब वो मूव भी नहीं कर पाते, ब्रीथिंग भी नहीं कर पाते, रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाते और ग्रो भी नहीं करते हैं। दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू सराउंडिंग, वो क्या करते हैं, अपने चारों तरफ के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ प्लांट जो एक सीजन के लिए जीता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ द ट्री जो मेनी ईयर्स तक क्या करता है, सरवाइव कर पाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। कुछ चीजें नेचुरल होती हैं, नेचुरल दैट मीन्स गॉड गिफ्टेड होती हैं, जो हमें गॉड ने पूरे हमारे वर्ल्ड में ऑलरेडी दी हुई होती हैं। और कुछ चीजें होती हैं मैन मेड, जो मैन्स बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, वो होती हैं मैन मेड थिंग्स। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स सारी क्या होती हैं, नेचर में पाई जाती हैं, इसलिए उनको नेचुरल थिंग्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, एयर, सनलाइट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड रॉक। कौन कौन से होते हैं एग्जाम्पल्स है कुछ? वाटर, ये भी गॉड गिफ्टेड है, एयर, ये भी गॉड गिफ्टेड है, सनलाइट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड रॉक्स, ये सब क्या है, ये नेचुरल थिंग्स हैं। थिंग्स मेड बाय ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। थिंग्स जो मैन बनाते हैं, ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, उनको हम मैन मेड थिंग्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, एरोप्लेन्स, ब्रिज अक्रॉस द रिवर एंड डैम्स। क्या क्या चीजें होती हैं? एरोप्लेन है, बिल्डिंग्स हैं, टॉयज हैं, फर्नीचर है, ये सब क्या है, मैन मेड थिंग्स हैं। तो क्योंकि इनको मैन बनाते हैं तो ये मैन मेड थिंग्स है। दीज आर सम पिक्चर्स ऑफ वाटर, दिस इज नेचुरल थिंग्स। दिस इज स्टोन, ये भी नेचुरल थिंग है, ये मैन मेड थिंग है। एरोप्लेन, दिस इज बिल्डिंग्स, ये भी मैन मेड थिंग है क्योंकि ये मैन ने ही बनाई हुई होती हैं। Then next is words aids of this chapter, that means word meaning of this chapter. The first word is living things, things which have life in them and need food, grow, reproduce, respond and feel. थिंग्स जिसमें अपनी लाइफ होती है, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं और ग्रो करते हैं, फील करते हैं, ये इसलिए क्या कहलाते हैं, लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, थिंग्स विच हैव नो लाइफ, थिंग्स जिसमें अपनी लाइफ नहीं होती है, एंड डू नॉट नीड फूड, उन्हें खाने की भी जरूरत नहीं होती है, डू नॉट ग्रो, ग्रो भी नहीं करते हैं, रिप्रोड्यूस, रिस्पॉन्ड और फील, रिप्रोड्यूस भी नहीं करते हैं, रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हैं और फील भी नहीं करते हैं, वो होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? टाइनी होल प्रेजेंट इन लीव्स। अब छोटे छोटे होल्स, लीव्स में जो छोटे छोटे होल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं। The next one is quick recall of this chapter. We see so many things around us like trees, cars, clouds, birds, people, toys, etc. हम अपने चारों तरफ बहुत सारी चीजें देखते हैं, लाइक ट्रीज देखते हैं, कार देखते हैं, ह्यूमन बींग्स देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं, टॉयज देखते हैं और मल्टीपल चीजें देखते हैं। The things which have life are called living things. थिंग्स जिसमें लाइफ होती है वो लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ, जिनकी कोई लाइफ नहीं होती है, वो क्या कहलाती हैं, आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स हैव अ डिफाइनाइट लाइफ स्पैन। लिविंग थिंग्स का एक डिफाइनाइट लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील, मूव, ग्रो, ब्रेथ, रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, वो फील भी नहीं करती हैं, मूव भी नहीं करती हैं, ब्रेथिंग भी नहीं करती हैं और रिएक्ट और रिप्रोड्यूस भी नहीं करती हैं। द थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। थिंग्स जो मैन मेड करते हैं, जिनको मैन बनाते हैं, उनको हम उन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, मैन मेड थिंग्स बोलते हैं। Come, let's do the exercise question of this chapter. The first one is write the correct option. The thing that are alive are called dash thing. जो alive है उनको हम क्या बोलते हैं, living things. Now come to the next page. A dash is a living thing. Table, dog, chair या computer. तो dog है living things. A dash is a non-living things. Bird, dog, table, plant. Non-living things क्या है इसमें, टेबल। प्लांट्स ब्रेथ थ्रो, प्लांट्स किससे ब्रेथ करते हैं, थ्रो स्टोमेटा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स।
Plant produce their food by the process of photosynthesis. Living things need food to dash and dash. Living things need food to live and grow. Insect breath through. Insect किससे breathing करते हैं? Speckles. Plants have very tiny holes in their leaves called stomata. Now the next is write true or false. All living things need food and water to live and grow. सारी living things को food और water चाहिए live and grow करने के लिए, तो this is true. A seed grow into a sapling. Seed एक sapling में बदलता है, this is true. Plants make their own food. Plant अपना खाना खुद बनाते हैं, this is true statement. All non-living things reproduce. जितनी भी non-living things होती है वो reproduce करती हैं, this is false. Living things reproduce करती हैं. Now come to the next question. The next is living things match the following. Living things और breathing organs. Cockroach किससे breath करते हैं? Skin and lungs. Plants stomata. Frog air holes और humans nose से. Now answer the following question. What are living things? Living things क्या होती है? इसका आंसर हम बताते हैं. What are living things? The things that are alive are called living things. जैसे animal, bird, trees, insects, snake, people and plants are living things. So इसका आंसर हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे. What are living things में. Now come to the next question. The next one is why do living things need food? Living things को food की जरूरत क्यों होती है? Living things need food to live and grow. All living things need food and water to live and grow. बड़े होने के लिए और ग्रो करने के लिए और लाइव रहने के लिए लिविंग थिंग्स को किसकी फूड की जरूरत होती है. तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहां से यहां तक आएगा. Why do animals move around? Animals एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते हैं? All living things move from one place to another to search food, look for shelter, protect themselves from heat, cold and rain etc. किस लिए मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर? खाने को ढूंढने के लिए और शेल्टर ढूंढने के लिए और अपने आप को हीट, कोल्ड और रेन से बचाने के लिए. तो इसका आंसर हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट वन इज डिफाइन ब्रीथिंग. ब्रीथिंग को डिफाइन करना है. व्हाट इज ब्रीथिंग? इसका आंसर हम लिखेंगे the process by which our body take in and out air is called breathing. जो प्रोसेस होता है जिसमें हमारी बॉडी क्या करती है, एयर को इन एंड आउट करती है, उसको हम ब्रेथिंग बोलते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. हाउ वी कैन से दैट लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. हम कैसे कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करती हैं? The ability of produce more than one kinds is called reproduction. Living things reproduce. Living things can reproduce their own kind. वो अपने से अपने जैसा एक छोटा को बर्थ देती है, इसलिए वो reproduce कर सकती हैं. Now come to the next point. The next is apply your knowledge.
ब्रेन टीजर, द एग्स ऑफ अ हैन कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, जो एग होते हैं हैन के वो अपने आप से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, येट दे आर कंसीडर्ड एज लिविंग थिंग्स। वाई, फिर भी उनको लिविंग थिंग्स बोला जाता है, क्यों? क्योंकि एग्स के अंदर से क्या निकलता है, एग्स के अंदर से हैन का बेबी निकलता है, इसलिए उसको लिविंग थिंग बोलते हैं। Now activity zone is classify the following into living things and non living things। इन things को classify करना है living things में और non living things में। lion living things, chair आएगा non living things, cow living thing, mango non living thing, tree living thing, bicycle non living thing, dog living thing, butterfly living thing, hat नॉन लिविंग थिंग, रेट लिविंग थिंग और स्टोन क्या है, नॉन लिविंग थिंग। तो इन सब में से हमने फाइंड आउट किया लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को। नाउ सब्जेक्ट लिंकिंग इज द थिंग्स बिलो आर गिवन इन सिंगुलर, ये चीजें सिंगुलर में दी गई हैं, राइट देयर नेम्स इन प्लूरल फॉर्म, इनके को हमें प्लूरल फॉर्म्स में लिखना है। जैसे बल्ब है तो हम क्या लिख सकते हैं, बल्ब्स, टेलीविजन, pencils, sheep, tomatoes, laptops। Now the next is life skill, go for a walk with your family and on the way collect 5 non living things। आपको अपनी फैमिली के साथ वॉक पर जाना है और आपको 5 कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स को कलेक्ट करना है। कैन यू सी दैम टू मेक समथिंग इंटरेस्टिंग, क्या तुम उन चीज से कुछ इंटरेस्टिंग बना सकते हो, आपको ये सोचना है उनको देख के 5 थिंग्स को। नाउ प्रोजेक्ट वर्क इज डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप, क्लास को 2 ग्रुप में डिवाइड होना है। कलेक्ट सम ओल्ड मैगजीन, कुछ ओल्ड मैगजीन को कलेक्ट करना है। 1 ग्रुप विल कट आउट पिक्चर्स ऑफ लिविंग थिंग्स एंड द अदर ग्रुप विल कट आउट पिक्चर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। एक ग्रुप को लिविंग थिंग्स की पिक्चर कट आउट करनी है उसमें से और दूसरे को नॉन लिविंग थिंग्स की। बोथ ग्रुप विल पेस्ट देयर कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स ऑन शीट ऑफ चार्ट पेपर्स, और दोनों ग्रुप को उन पिक्चर्स को चार्ट पेपर पर पेस्ट करना है। डिस्प्ले द चार्ट ऑन द स्कूल बुलेटिन बोर्ड, और उस चार्ट को आपको स्कूल बुलेटिन बोर्ड्स पर हैंग कर देना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।